ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸੰਤਨ ਕੈ ਸੁਨੀਅਤ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਬਾਤ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਧੁਨ। ਹੋਰ ਰਹੇ ਦਿਨ ਸਾਰ ਰਾਤ ਰਹਾਓ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨੇ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕੀਨੀ ਦਾਤ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨੇ। ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕੀਨੀ ਦਾਤ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਪ੍ਰਭ ਕੇ। आठ पहर गुण गावत प्रभ के। काम क्रोध इस तन ते जात, त्रिपत अघाए एक प्रभ दर्शन। अमृत हर रस भोजन खात, चरण शरण नानक प्रभ तेरी। कर कृपा संत संग मिला, चरण शरण नानक प्रभ तेरी। कर कृपा संत संग मिला। गुरु की प्यारी साजी निवाजी सत्कारयोग साध संगत जी, आप हर रोज इस वेले निर्मल पंथ की गौरव गाथा का महान गौरवमयी इतिहास व्रत पंडित विद्वान त्यागी वैरागी भजनीक अभ्यासी तत्वेते आत्मदर्शी महापुरखों के पुरातन पर उपकारां नूं सारे वाचते हैं, सुनते हैं। सो अज भी उस कड़ी नूं जोड़ते हुए आप सरबत संगत महापुरखों के पावन पवित्र जीवन नूं सरवण करो जी। सारी संगत प्यार नाल आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कल का प्रसंग जो आप जी सरवण कर रहे सी, महापुरखों की महिमा सरवण करके हजूर साहब के तखत के प्रचारक ग्रंथी सिंह साहबान, जिन्होंने गुरमत का गुरबाणी प्रचार का प्रभाव पैण के कारण पटियाला के इलाके दे विच अथवा होर दूसरियां स्टेटां दे विच उन्होंने जदों महापुरखों का ये पावन प्रचार सरवण किया, बड़ा अच्छा लग्या भी क्यों ना होवे इन्हां महापुरखों के चरण हजूर साहब भी पवाए जान ते गुरबाणी का
ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਨਾ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪਾਇਲਟ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਮੰਡਲੀ ਜੋ ਰਮਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਨਾਭਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾਇਆ। ਸੋ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਕੁਛ ਦਿਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਰਹਿਣ। ਪਰੰਤੂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਧੜੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਧੜਾ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਉਣ, ਪਰੰਤੂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਦਖੋਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ, ਗਲੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸਰਪੰਚ ਆ ਕੇ ਸੋਚੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੌਸਪੀਟਲ ਬਣਾ ਦਿਆਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੰਗੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਬਣਨੀ ਆ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦੋ ਨੀਹਾਂ। ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਨੀਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦੋ ਨੀਹਾਂ ਹਨ, ਧਰਮ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਏਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਰਦ ਮਨਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਰੰਤੂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਿਰਮਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਕਲਗੀਧਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲਲਾਇਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰਹੇ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਖੈਰ, ਆਪਾਂ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਦੇ ਝਗੜਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਵਾਪਸ ਚੱਲਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਧਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਆਪ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਫਲਾਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਮਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਭਾਵਨਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਵਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਗੱਡੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਠਨ ਪਾਠਨ, ਕੀਰਤਨ, ਭਜਨ
रोज़ का सवेर शाम का नितनेम करके खुशियां लेंदे ही रहे। सो जदों फिर निमंत्रण आया तो फिर महापुरख उत्थों के दर्शन दिदारियां लई गए। ये प्रसंग आप जी कल सरवण कर रहे सी। ये जेठ सुदी 7 संमत 1932 1875 ईस्वी की गल है। सो खैर ये चलता आउंदा है। आओ महापुरखों के धर्म प्रचार, महापुरखों के पर उपकार, महापुरखों का पर उपकारी जीवन निरंतर एक गंगा की तरह, एक चश्मे की तरह वगदा रहता है। सो आओ अगला आने वाला जो प्रसंग है, आप जी बड़े प्यार नाल जो कुटिया ते विराजमान हो इस वेले, जिन्नी संगत इस वेले लाइव जुड़ चुकी है, किरपा करके अगे शेयर भी कर दिओ ते लाइक भी कर दिओ ताकि होर संगतां भी आनंद मान सकन। आओ प्यार सहित मुख करो पवित्र, सारी संगत आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। दूसरे दिन अमृत वेले भाई हरि सिंह जी पुजारी, भाई खुशहाल सिंह जी सुखई, भाई बिशन सिंह मजैल, भाई प्रेम सिंह आदिक 40 सिंह अखाड़े नूं लैण वास्ते पुजे। परस्पर मिल के इन्हां दे नाल रम्मत अखाड़े दे 60 संत, जिन्हां विचों 40 संतां दे सफेद वस्त्र, किरपान कछहरे आदि ककार धारण किए हुए। ये आपां कल भी बेनती की सी कि निर्मले महात्मा शस्त्रां सहित भी रहिंदे हन, ककार भी प्रॉपर रखते हैं। कुछ महात्मा अमृत छक के इस तो निर्लेप होके भी गुरमत का बाणी का प्रचार करते हैं। सफेद वस्त्र भी पहनते ने ते पराया करके भगवी भावें एक दस्तार ही होवे, निर्मले महात्मा भगवें वस्त्र क्यों कलगीधर सच्चे पातशाह जी ने आप सिखां नूं पवा के एक वरकतां वाला, एक ऋषियां मुनियां वाला लिबास भेस पवा के, इहदे ते कोई शंका नहीं कर सकता। गुरु साहब ने आप बनारस भेजे सी। सो इस वास्ते कुछ महात्मा महापुरखों के सफेद वस्त्र सन। पेटा प्रसाद लैके रण सिंगे वजाते हुए श्री दरबार साहिब सचखंड दर्शनां लई पुजे। अखाड़े वालों भेटा प्रसाद समर्पण किया गया। नमस्कारां करके बैठ गए। पुजारी सिंघां ने सारियां नूं सत्कार नाल तखत साहिब के उपर बिठाया। आखो सतनाम। अंदरला पुजारी भाई देवा सिंह जी अरदास करन वास्ते खड़ा ही होण लगा सी कि इस समय विरोधी धड़े दा बाहरला पुजारी भाई नारायण सिंह अते हर्षा सिंह लांगरी बोल उठे कि उन्ना चिर अरदास नहीं होनी चाहिए जिन्ना चिर तनख्वाह ना लाई जाए। भाई हरि सिंह जी ने हाथ जोड़ के आख्या, खालसा जी सब तरह नाल समझौता हो चुका है, हुण हो चुके निर्णय ते पानी ना फेरो। साध संगत जिन्हां दा अंदर विरोधता हुंदी है ना, वो लोग अपना अखीर तक जोर लाउंदे ने। ये गुरुद्वारे साध संगत महंतां तो आज़ाद करवाए सी। किहड़े महंतां तो? जिहड़े शराबां पींदे सी, जिहड़े लुचपुणा करते सी, उन्हां तो ही आज़ाद करवाए सी। ये महात्मा जिन्हां महापुरखां ने गुरमत का प्रचार करन लई सतगुरु सच्चे पातशाह दीआं असीसां लैके दुनिया भर दे विच बीड़ा चुकिया। उन्हां नूं इन्हां तख्तां ते तनखावां लाउणीआं
बस सिर्फ है कि जिन्हों के दिमाग काम नहीं करते वो अपना वत्तर वाहते हैं। खैर, महापुरुष संत लोग एक साल तो सतगुरु जी के श्री दरबार साहब की यात्रा दर्शन वास्ते बैठे हुए सन। साध संगत होर लम्मा समा बैठे। इन्हां दे प्रेम नूं वेखो, सारे मिल के इस बने प्रेम नूं होर वधाइए। आपां बाणी रोज पढ़दे हां, होवो इकत्तर मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिव लाए। ते साडे अंदर इकत्तरता ते तां होवेगी जे सतगुरु सच्चे पातशाह नूं हाजिर नाजिर समझांगे। तो जदों साडे अंदर सतगुरु दा कोई ध्यान नहीं, भजन नहीं, कोई भै नहीं, तो फिर अंदर तो एक दीवार खलोती रहनी है। हाँ जी, इस वास्ते उन्हां ਸਿੰਘਾਂ ने आख्या भाई आपां मिलवर्तन वधाइए। पर विपक्षी चुप ना होए, बल्कि कहन लगे तुसी रिश्वत लैके पतित तखत ते बिठाए हैं। रौला वधदा ही गया। संत बैठे दोनों पासियां दे मुंह वल वेख रहे सन। इस समय विपक्षी धड़े वल्लों भाई हरि सिंह जी ते बंदूक चलाई गई। मतलब साध संगत है ना, जे मैं गलत ना कहा तो मसंदा तो जो कुछ हुंदा वो अपना काम करते हैं। भाई हरि सिंह तो बच गया, पर एक सिपाही मर गया। इस समय करतार सिंह कूके ने वड्डा धौंसा वजा दिता अते उच्ची उच्ची कहना शुरू कर दिता, निर्मले तखत साहब नूं लुटी जा रहे हैं, फड़ो मारो। बस ये आवाज़ सुन के अनेकां निहंग सिंह, अनेकां दखणी सिंह इत्थों तक कि इन्हां लोकां दियां औरतां भी सब संत लोकां नूं मारन पै गईयां। संत आश्चर्य होके वेख रहे सन कि गुरु कलगीधर पातशाह ये की लीला वरता रहे हो। पर आक्रमणकारी संतां नूं मार देण उत्ते तुले हुए सन। जिहड़े शरारती लोग हुंदे ओह कहंदे थोड़ी जी चिंगारी शुरू करो, बस रौला पा देंगे। अज भी यही हो रहा है। संतां ते जोरदार हमला किया गया। लिद्दड़ां वाले महंत ज्वाला सिंह जी की बांह तोड़ दी। ये वेख के संतां दे स्वै मान ने भी उबाला खाधा। संत भी माझे मालवे दे मार्शल जट जाति दे अमृतधारी सन। निहंग सिंघां अते दखणियां दे हमले नूं दृढ़ता नाल रोक दिता। दोनों पासियां दे 20 आदमी फट्टड़ हो गए। गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह जी का बचन है, जब बाण लाग्यो तब रोस जागे। बलवे का पता लगन ते भारी गिणती विच फौज आ गई। निहंग सिंह दखणी सिख अते निर्मले संत गिरफ्तार कर ले गए। जख्मियां नूं हस्पताल भेज दिता गया। अमृत वेले तो शाम तक दरबार सचखंड बंद रहा। निर्मले संतां दे हितैषी ते विपक्षी इलाका बंदी ते जात बरादरी दे कारण एक हो गए। एक दूसरे नूं बचाउण दे यतन होण लगे। सारा दोष निर्मले संतां उपर थप्पिया गया। साधु महात्मा चेती साध संगत कोई हेरा फेरी बेईमानी करन दे हक विच नहीं होंदे। निर्मले संतां दे खिलाफ पंजाब वल तख्तां गुरुद्वारियां राजियां महाराजियां पंथक आगुआं ते जन सधारण लोकां नूं हजूर साहब दे दखणी सिखां निहंग सिंघां ने अनेक चिट्ठियां लिख भेजियां, जिन्हां विच लिखिया सी कि निर्मले पतित हन, एक ककारां दी रहत नहीं रखदे। तख्तां ते गुरुद्वारियां विच इन्हां दी अरदास भेटा पूजा अते दाखला बंद किया जावे। शराबियां दा चढ़ावा भावें जरूर लिया जाए। राजे महाराजे ते पंथक आगू कोई दान पुण्य ना देण,
मिल वरतन बंद की जाए। ईरखा इन्नी बंदे दी अग भड़काउंदी है अंदर। निर्मले संत विचार लैके बैठे रहे कि जदों अदालती मुकदमे का फैसला होवेगा सच झूठ का सबनों आपे ही पता लग जाएगा। श्री हजूर साहब नदेड़ वेखे 7 महीने मुकदमा चलिया। निर्मल रम्मत अखाड़े दे आगुआं ने सारे सबूत पेश किए अते दस्या कि दरबार सचखंड दे पुजारी बुरहानपुर तो अखाड़े नूं मोड़ के लैके आए हैं। उस सारे हुक्मनामे अते अन्य कागज पत्तर पेश किए जिन्हां विच अखाड़े नूं निमंत्रण भेजिया गया सी। इस आधार ते निर्मल अखाड़े दे सारे संत सत्कार पूर्वक बरी किए गए। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। हजूर साहब दे 8 सिखां नूं बलवे दे दोष विच सजा दिती गई। मूर्खां नूं तां फिर मूर्ख गंढ पवे मोह मार, फिर मार तां पैंदी है ना साहब संगत। सेवक की ओढ़क निभही प्रीत वाला जीवन हुंदा है। रब दे प्यारे वरक्त महात्मा विद्वान सज्जन उस मालक ते भरोसा रखते हैं। ये भी नहीं कि ये किते गिदड़ा वर्गे हुंदे ने, शेरा वर्गे हौसले हुंदे ने, पर अजर को जार लै अमर को मार लै वाला इन्हां दा जीवन हुंदा। अजार पदार्थ नूं जर लैंदे ने। सो इस फैसले तो मगरों रम्मत अखाड़ा मगर सुधी संमत 1931 1875 ईस्वी नूं श्री हजूर साहब तो प्रयागराज की अर्ध कुंभी मनाउण चला गया। दखणियां दा झूठा कथन सुन सुन के बिना सोचे समझे तो पंजाब दे सिख भी निर्मले संतां ते तर्क वितर्क करन लग पे। जिहड़े शरावादी लोग हुंदे ने ना वो शरा नूं मुख रखते ने। बुल्ले शाह दियां काफियां पढ़ के देखिए वो शरा दियां तज्जियां उड़ाउंदा है। बाबा कबीर साहब की बाणी पढ़िए, नामदेव जी की बाणी पढ़िए। बाबा कबीर जी नूं भी मुसीबतां आईयां, बाबा नामदेव जी नूं भी मुसीबतां आईयां, ईवन के भगत रविदास जी नूं भी बहुत मुसीबतां दा चाला चलना पिया। शरावादी लोग अपनी शरा नूं मुख रखते ने ते जिहड़े हकीकी जीवन जींदे ने वो फिर अंतर बाहर एक रस जो चेतन भरपूर बिब नभ सो ब्रह्म है, न नेरे न दूर वाला जीवन बसर करते। ये तर्क वितर्क करन लगे। कशहरा ना रखण दा काफ़ी सवाल छेड़िया गया। ये बहस मुबाहिसिया दा युग सी। मुबाहिसिया दा युग सी। थां थां पुरातन ते नवीन ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ शास्त्रार्थ ਹੁੰਦੇ सन। इस समय सब राजे महाराजे साधुआं संतां दी लड़ाई समझ के चुप रहे। किसी ने भी कोई हिस्सा नहीं लिया। पर महाराजा हीरा सिंह ने हजूर साहब दे पुजारियां नूं अते हरद्वार श्री मन जी महाराज नूं पत्र लिख के दोनों धिरां विच सलाह करवाई। उत्तर विच श्री मन जी महाराज ने पत्रका विच केवल इन्ना ही लिखिया, ना को बैरी नाहे बेगाना, सगल संग हमको बनाई। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। साध संगत निर्मले महात्मा दा पुरातन इतिहास खोजी चलो। गुरबाणी दे पक्ष नूं मुख रख के अपने जीवन नूं बसर करते रहे। साध संगत इस तरह ते गद्दियां ते बैठे बड़े बड़े राजे महाराजे कुछ भी करते हैं, पर उन्हां महापुरखां ने उस मुख गद्दी ते स्थित होके जदों उस पत्रका का उत्तर दिता, आख्या ना को वैरी ना ही बेगाना। साडे लिए कोई वैरी नहीं, साडे लिए कोई बेगाना नहीं, साडे लिए सारे परमात्मा दी अंश।
सो सत्कारयोग साध संगत, जेकर साडी अरदास सारे देश के गुरुद्वारियों विचों बंद हो जाए तो साडे हिरदे विच फिर भी सारे गुरुद्वारियों वास्ते पहला दी तरह ही सत्कार रहेगा। आखो सतनाम। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। मतलब कि जे अरदास तुसी नाम ही करोगे भाई, फिर भी साडे दिल विच साडे गुरु के गुरुद्वारियां दा सत्कार साडे दिल विचों तो तुसी नहीं ना कढ़ सकते। सत संगत ते पुरातन इतिहास दियां कड़ियां जड़ियां ने ये बड़ियां एक विचारशील ने। ये छोटे छोटे नुकते आप संगत सरवण कर रहे हो, फिर भी यूट्यूब ते पए रहने ने। ये गल्लां विचारण वालियां ने। सत्कारयोग साध संगत बाणी कहती है, संत मिले किछ सुनिए कहिए, मिले असंत मस्ट कर रही है। कोई रब दा प्यारा गुरमुख गुरसिख मिले तो चंगी वार्ता विचार करिए, मूर्खा नाल काहदा झगड़ना। सो इस प्रकार महापुरखा ने कहा, जे साडी कोई अरदास नहीं भी होवेगी तां भी असीं गुरु घरां दा सत्कार हमेशा करते रहांगे। जेकर निर्मल पंथ की अरदास बंद करन वाले पुजारी निर्मल अखाड़े के किसी साधन विच भी आउणगे तां साडी वल्लों निहंग सिंह दखणी सिख गृहस्थी कोई भी होवे, लंगर समय पंगत विच उन्हां नूं भी असीं बराबर भोजन देवांगे। इहनूं कहंदे ने साधुताई, ते जो कर रहे सी उन्हां नूं कहंदे ने मूर्खताई। सत्कारयोग साध संगत कहते ने कि सियाणियां दी जिहड़ी मत हुंदी है वो एक हुंदी है, ते मूर्खां दी मत आपो अपनी। 100 सियाणे एक मत, ते मूर्ख आपो अपनी। इस वास्ते उन्हां महापुरखां ने कहा कि साडे पास जे आउणगे दखणी सिख ते असीं गुरु के लंगर विच इन्हां दा सत्कार करांगे, भोजन छकावांगे। साडी तां सारी मनुखता नाल समदृष्टि है भाई, हिंदुआं नाल, मुसलमानां नाल, ईसाइयां नाल। जद 4 दरवाजे हरमंदर साहिब दे रखे गए ते उन्हां 4 दरवाजियां दा मकसद की है? कोई गावे को सुने हरनामा चित लाए, खत्री ब्राह्मण शूद वैस उपदेश चौं वर्णा प्रसन्न। केवल पंक्तियां नूं पढ़ लेना, पाठ नूं पढ़ लेना ते भोग पा देना, परंतु उस बाणी ते चलना। फिर साध संगत इन्हां निर्मले महात्मा दे विरसे विच आया कि उन्होंने कहा भी असीं वितकरा नहीं करांगे। हजूर साहब के पुजारियों ने जो महाराजा हीरा सिंह नूं उत्तर भेजिया, उस विच लिखिया सी, निर्मले कशहरे पहनण अते भगवे वस्त्र ला देण दा विश्वास दिवाउण। महाराजा हीरा सिंह ने दोनों चिट्ठियां नूं पढ़ के अपने विशेष दूत हथ दस्ती पत्रका दे के श्री मान जी कोल भेजिया, जिस विच लिखिया सी, तुसीं कशहरे पहन लो तां सारा वाद विवाद खत्म हुंदा है। उत्तर विच श्रीमान जी महाराज ने महाराजे नूं लिख के भेजिया, असीं कशहरे अपनी इच्छा नाल तां भावें धारण कर लईए, पर किसी दी जिद अधीन कशहरा पहन नहीं सकांगे। वैसे असीं इकल्ला कशहरा ही नहीं, 5 ककारां दा आदर करदे हां। अमृत पान समय निर्मले संतां दे 5 प्यारे भी ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ निर्मले संत भी 5 ककार धारण करते हैं। केवल धारण ही नहीं करते, प्रचार भी करते हैं। जिस तरह पुजारी कहते हैं, इस तरह सानू प्रवान नहीं है। जोर किया सो जुल्म है, ले जवाब खुदाए। कोई जोर नाल कोई धक्के नाल एवें करे तो अच्छा नहीं। पिछले समयां दे विच
बहुत धक्के नाल कईयां नूं अमृत छकाया गया। सत्कारयोग साध संगत किधर गए? सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया। पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया। जो सच्चा मन च वसे ना फिर साध संगत अमृत बाणी भी मिठी लगती है ते कलगीधर दे दिते हुए ककार भी शोभ को सतनाम। श्री वाहिगुरु। श्री मन जी महाराज का उत्तर पढ़ के महाराजा हीरा सिंह मन में काफ़ी नाराज होए। उन्होंने माण सी कि मेरी रियासत ने अखाड़ा बजण समय बड़ी सहायता की है। श्री मन जी मेरे कहण तो किवें बाहर होणगे? हुण इह थोड़ी है भी राजे जो कहण वो प्रवान होवेगा भी तुसी कुछ भेटावां दित्तियां ने, इत्थे आके कोई कह दे भी मैं तो इत्थे लाख रुपया सेवा च दिता, फलाना बंदा नहीं आना चाहिए। बिल्कुल सरासर गलत है। तुसी एवें दी मर्यादा रखो क्योंकि इत्थे मेरी सेवा ज़्यादा है, बिल्कुल सरासर गलत है। पर श्रीमान जी महाराज ने अपने स्वै मान अते सिद्धांत नूं मुख रखिया। इस तरह महाराजा हीरा सिंह नाभापति अते श्री महंत जी महाराज 3 वर्ष चिट्ठी पत्र द्वारा अपने अपने पक्ष नूं सिद्ध करते रहे। अंत महाराजा हीरा सिंह ने बाकी दोनों रियासतां पटियाला ते जींद विच चिट्ठी पत्र करके दोनों रियासतां दे प्रतिनिध अते अपने कर्मचारी चिट्ठी दे के हरिद्वार श्री मन जी महाराज कोल भेजे। चिट्ठी विच लिखिया, दस्तूरुल अमल दी लिखत अनुसार आप जी नूं कशहरा आदਿਕ धारण करके रहत मर्यादा दे धारणी बन के रहना चाहिए है। श्रीमान बाबा महताब सिंह जी तो बिना कोई भी निर्मल पंचायती अखाड़े का अधिकारी पंडित नहीं होना चाहिए। सुनिया है स्वर्गीय तिना महाराजियां का यही उद्देश्य से। इस वास्ते वर्तमान तिना रियासतां दे महाराजियां नाल आप जी दे मतभेद नहीं होने चाहिए। तिना रियासतां ने श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा कायम करने में दान दे के हिस्सा पाया। इस वास्ते आप जी का तिना रियासतां नाल संपर्क है। आप किसी तरह जागीर का नुकसान ना करा बैठो। उत्तर में श्रीमान जी महाराज ने तिना ही महाराजा नूं पत्र लिख के भेजे। असी दफा 9 वाले दस्तूरुल अमल पढ़ के विचारे हैं जिन्होंने तिना स्वर्गीय महाराजा ने लिख के अपनिया राजकीय मोहरां ला के प्रवानगी दी है। दस्तूरुल अमल विच कशहरे कड़े की कोई पाबंदी नहीं है। अगे महाराजा हीरा सिंह जी नाभा नूं भेजी पत्रका विच विशेष पंक्ति लिखी। इस वास्ते साडा उही उत्तर योग समझना जो असी पहलियां चिट्ठियां विच आप जी नूं भेजे। तिना रियासतां दे एहलकार श्री मन जी महाराज तो लिखती जवाब लैके वापस चले गए। 1879 ईस्वी विच हरिद्वार का कुंभ पर्व आ गया। इस समय सारे देश के कोने कोने विचों हज़ारां की गिणती विच निर्मल पंथ के संत एकत्र हुए। इस समय एक विशेष इकट्ठ विच श्रीमान जी महाराज ने सारे निर्मल भेग के महंतां संतां विद्वानां विरगतां अगे श्री हजूर साहब की घटना के वेरवे सहित हालात दस के वर्तमान समय निहंग सिंघां गुरद्वारियां दे पुजारियां विशेष करके महाराजा हीरा सिंह के वतीरे का विस्तार पूर्वक वर्णन किया अते नाल ही कहा हुण सारा भेख एकत्र होया है। सानू हुण भेख जो आग्या करेगा असीं उसे अनुसार वर्ताव करिए। भविष्य विच अखाड़े की जायदाद का कोई नुकसान ना हो जाए। जिस दोष दे असी भागी बनीए इस वास्ते सारे भेख नूं सूचित कर दिता है। जो प्रस्ताव पास होवेगा असी उस अनुसार चलांगे। इस समय निर्मल भेख वालों हेठ लिखिया प्रस्ताव पास किया गया।
एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्री अकाल जी सहाय। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी के निर्मल पंथ के सर्व संत महंत उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम निवासी सब श्री गंगा जी हरिद्वार मेले कुंभपुर छावनी निर्मलियों की में आकर जमा हुए। तब सम्मत 1936 चैत्र सुदी सत को श्री महंत राम सिंह साहब ने सर्व संतां महंतां के आगे ये प्रार्थना करी, जो वास्ते फैसला करने विवाद निहंगा वगैरह के क्या कुछ कुल पंथ की राय है और मेरे वास्ते क्या कर्तव्य है। तब सर्व पंथ के संता महंता ने कमेटी करके सलाह ठीक ठहराई कि जो कुछ बरवक्त खड़ा करने धर्म धजा खाड़े के वाली पटियाला व नाभा व जींद व फरीदकोट व छछरौली वगैरह राजगान व राईसान और सिखों सरदारा ने भाई मेहताब सिंह जी को हदायतनामे में लिखित कर दी है और जिस पर आज तक बराबर अमल बरामद हो रहा है, उसी हदायत पर आइंदे को अमल होता रहे, यानी उसी की तामील होती रहे। और श्री महंत से लेकर कुल पंथ पंच परमेश्वर साबिक दस्तूर अपने बिहार में कायम बना रहे और हम सब पंथ संत महंत निर्मले जैसे बाबा मेहताब सिंह जी की मदद खिदमत में हाजिर पीछे रहे हैं, तैसे अब श्री महंत राम सिंह जी की आज्ञा सेवा मदद में दिलों जान से हाजिर हमेश रहेंगे। श्री महंत अपने कर्म धर्म में कायम रहें जिस तौर से भाई मेहताब सिंह जी रहे हैं। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सही महंत भगत सिंह जी अमृतसरी, इन्हां दा अस्थान कौलसर दे नज़दीक सी। दास काफ़ी दर्शन दिदारे उस अस्थान दे करता रहा। महंत शमीर सिंह जी विरक्त बलौंगी, महंत जवाहर सिंह जी सुकरोलापुरी, महंत मिश्रा सिंह जी मोती राम लम्या वाले, महंत माणा सिंह जी फतेहाबादी, महंत गुरदित सिंह जी महंत शहर वाले, महंत देवा सिंह जी गोदड़िए, महंत देवा सिंह विरक्त तपाणिया खडूर साहब वाले, महंत हरि सिंह जी विरक्त अमृतसरी, महंत संत सिंह लाहौर वाले, ज्ञानी सिंह माणूकियां वाले, महंत बिशन सिंह जी अंतरजामी के, महंत अतर सिंह छीने वालिए लोहगढ़िए, महंत मान सिंह लमिया वाले, महंत आला सिंह गोविंदवालिए, महंत भाई मेघ सिंह बुडालिया, महंत साहिब सिंह जगरामा, महंत पंडित दल सिंह संत अमृतसरीए। ये जो पंडित दल सिंह जी होए ने, इस स्थान ते साडे पिता जी ने उस स्थान को अगे चलाया, क्योंकि बोड़ वाला डेरा अमृतसर दे विच है, जिथे साडे पिता जी अपनी काफ़ी लंबी यात्रा सेवा सिमरन नाल करते रहे। ये पंडित दल सिंह जी जो अमृतसरीए हैं, ये साडे वड वडेरे महापुरख सन। महंत संत भूप सिंह जी रामपुरी, बाग सिंह जी सोया जंछी, संत गंगा सिंह जी बरियाम नंगलीए, संत बूटा सिंह जी तरन तारण वाले, संत राम सिंह जी बारठ गुरुद्वारे वाले, महंत चन्नन सिंह बाली मेहताब सिंह, महंत दान सिंह ज्ञानी दयालपुर वाले, भाई नत्था सिंह मामित वाले, महंत भीम सिंह महाराज वालियों बराज वालियों के, बुंगे के महंत हनुमान सिंह, महंत निहाल सिंह महाराज वाले, ठाकुर सुधा सिंह दोदर वाले, मतलब कि सारा पंजाब अथवा किन्ने पासियां तो महात्मा उस टाइम ते उत्थे विराजमान सन। महंत गुरदित सिंह जी सैर तख्त पड़ी वाले,
महंत ठाकुर सिंह अमृतसर बुंगे वाले, महंत हजूरा सिंह, भाई करम सिंह सुखो वाले पुठोहार, पंडित भाई नारायण सिंह सुखो वासी पुठोहार दे, बाबा बुद्ध प्रकाश सुखो वासी भाई नारायण सिंह पिंडी वाले, बाबा निहाल सिंह पड़ियाल धन्नी वाले, भाई ईश्वर सिंह सुखो वाले, भाई जवाहर सिंह जी राम कुंडा कुरी वाले, भाई भगत सिंह चकवाल, बाबा ब्रह्मानंद मंगवालिए, भाई मगर सिंह तथा राम रतन जी सरकारों वाले, भाई गुलाब सिंह चारपुरिए, भाई सरबग सिंह मूसा वाले, महंत राम सिंह जलवेड़े वाला, सुंदर सिंह भोला सिंह सुकाणिया दे महंत, महंत भाई मोर सिंह खजाले वाले संप्रदा कादियां के, भाई लाल सिंह जमरा दा महंत, राम सिंह गिरवड़ी वाले, महंत ईश्वर सिंह ऊपर लिखा जो सही व कलम खास पढ़ने वाले गुरुद्वारिये पटने वाले, कान सिंह कोटवाल ड्रौली वाले, महंत गुलाब सिंह नानू सिंह की, लोहगड़ियां दी मेवा सिंह की, किशन सिंह सैदो, जिमें जिमें नाम लिखे सन उस लिस्ट ते साध संगत अज तो कितना समा पुरातन इतने महापुरुष स्थानां दे इकट्ठे होए। महंत जयराम सिंह जी कांशी वाले, उत्तरार्थ सम्मति पंडिता दो सिंहासन नारायण सिंह राजगिरी वाले, भाई कान सिंह महंत खडूर साहब वाले, भाई तारा सिंह मांगटा वाले, महंत मलूक सिंह गोदड़िए, चंदा सिंह चाटड़ा, ठाकर जीत सिंह पछौरिया, महंत संत सिंह टिब्बे वाले, महंत गुरदित सिंह उगोकिया वाले, बाग सिंह हेड़ी की खुई वाले, रणी वालियां खड़क सिंह जी महाराज जी की, माणू का रागी अतर सिंह, ज्ञान सिंह चेले महंत बीर सिंह के, महंत गुरदित सिंह पंडोरी वाले, ये भी साढ़े वड वडेरे हुए हैं, दया सिंह जी डींगरियां वाले, मलूक दास जी जगरावां वाले, महंत चूड़ सिंह दादर वालों की, महंत हीरा सिंह बुट्टर वालों की, ईश्वर सिंह वदनी वाले, महंत ध्यान सिंह जी बेर वाले, महंत वजीर सिंह जी मलक वाले, महंत फतेह सिंह जी खुआले वाले। ये सारे नाम मैं तां लै रहा कि सारे पंजाब अथवा दूसरिया प्रांतां दे विच महापुरख सारे विद्वान विरकत प्रचार करते रहे ने, नहीं तो भावें दो नाम लैके भी आपां इन्हां नूं संतोख दईए, पर ये सारे नाम रिकॉर्ड करने चाहुंदे आ कि पंजाब विच और बाहरलियां स्टेटां विच ये महापुरख धर्म का प्रचार करते रहे। आखो सतनाम। महंत गुलाब सिंह जी होरां दी बहाल ਸਿੰਘੀਏ ਵਰਪਾਲੀਏ, महंत दल सिंह जी सजाने वाला राम तीर्थिया। साध संगत पंजाब का किहड़ा पिंड है जिथे निर्मले महात्मा महापुरख नहीं होए। फूला सिंह जी भाण लिंगा, भाई लहणा सिंह कल्ले वाले, भाई जीत सिंह वरियां वाले, दास सरबत साध संगत का अनंत सिंह हकीम अमृतसर वाले, महंत सुखा सिंह रावलपिंडी वाले, महंत कपूर सिंह कान सिंह अमृतसरिया, भाई प्रेम सिंह तथा निहाल सिंह आदि श्री ठाकुर खुदा सिंह जी दासन दास लाहौर। सारे निर्मल भेख ने श्रीमान जी महाराज दियां विचारां दा एक मत समर्थन किया। भेख की सम्मति नूं प्राप्त करके श्रीमान जी महाराज होर भी दृढ़ अते निश्चिंत हो गए। समझो कि जिवें पहले महापुरुष संत बाबा महताब सिंह जी महाराज रहंदे सन, उस प्रकार ये अगे मर्यादा चलती रहेगी। ये सारिया ने श्रीमान साहब जी का समर्थन किया। भावें उन्होंने निहंग सिंघां ने, उत्थों के पुजारियों ने विरोधता की, पंजाब के लोगों ने विरोधता की। अकाली लहर वगैरह तो उदों कदों चली सी साध संगत, तो बहुत बाद की गल है, 1921-22 की गल है। ये बहुत पुरातन इतिहास है। सो कहण तो मुराद के काफ़ी लोगों विरोधता की, पर महापुरखों के असीं अपनी उस समूथ लाइफ विच
श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी का प्रचार प्रसारण करते रहेंगे। सो श्री मान साहब जी ने आख्या सी जे मैनू भेख कहेगा तो फिर असी ये मर्यादा तोड़ देंगे, नहीं तो फिर इसे मर्यादा विच ही रहांगे। महाराजा हीरा सिंह सोचते सन कि निर्मल अखाड़ा ते सारा पे कौम पर श्री मान जी महाराज को समझा के मेरे विचारां अनुसार कोई निर्णय करेगा, पर उपराला प्रस्ताव पास होया सुन के महाराजा निराश हो गया। ये महाराजा अजीब किस्म के सुभाव का मालक सी। फिर लिखा पढ़ी आरंभ कर दी, पर दोनों पासियां तो किसी के ख्यालों में कोई तब्दीली ना आई। महाराजे ने कुछ होर रंजिश मन के दूसरिया दोनों रियासतां पटियाला ते जींद नूं श्री मान जी दे बेपरवाही बारे लिखिया, पर दूसरिया दोवां रियासतां दे महाराजिया ने इस संबंधी कोई रुचि ना लई। उन्होंने सोचा कि वड्डे महाराजे अपनी इच्छा अनुसार जो पुण्य धर्म कर गए हैं, सानू उस धर्म में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है, बल्कि असी वड्डियां दे लिखती दस्तूरुल अमल अनुसार वर्ताव करांगे। इस करके 1886 ईस्वी का चतुर्मासा पटियाले विच उत्साह अते धूमधाम नाल लग्या। इस समय पटियाले विच बनी कौंसल ऑफ रेजिडेंसी दे प्रेजिडेंट सरदार देवा सिंह जी सन। इस समय पुरानी लिखत अनुसार रमत अखाड़े का यथायोग पूजा सत्कार होया। इस चतुर्मासे के लगन कारण हजूर साहब वाले ते अन्य पुजारियों ने फिर विरोध आरंभ कर दिता। इस साल निर्मल पंथ के विरोध विच जहरीला प्रचार चलिया। निर्मले संत धीरज अते संतोख नाल चुप रहे। साध संगत भावें इतिहास दीयां कड़ियां ना भी लिखियां जांदियां, परंतु असल तौर पर जो होया सत्कारयोग श्रीमान संत बाबा बलवंत सिंह जी कोठा गुरु महापुरखा ने बिल्कुल इन बिन लिखे, इतिहास नूं लुकाया छुपाया नहीं है। इस समय निर्मले संतां दी सेवा विद्वता घालना ते पुरातन मर्यादावां नूं समझण वाले व्यक्ति पूर्ण हमदर्दी करते रहे। असी कुदासीन महात्मा श्रीमान संत टहलदास जी का छापिया होया विज्ञापन पाठकों के लाभार्थ अंकित करते हाँ, जो श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा कनकल के रिकॉर्ड में सुरक्षित है। विज्ञापन सच्चा हवाल मालूम होवे पंथ खालसे प्रति। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मैं इत्थे थोड़ी जी विचार करांगा कि सत्कारयोग साध संगत बहुत ऐसे संप्रदाय हैं जेड़े के श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी नूं मनदे, प्रकाश करते, गुरु साहब का प्रचार करते और नितनेमी सन। कट्टर पंथियां ने सारा कुछ करदियां वो साडे सिक्खी पंथ विचों सिख खारिज कर लए, जिवें के नामधारी सिख, जिवें के नीलधारी सिख। तो जब मैं बेनती करा गलत ना होवा, राधा स्वामी संप्रदाय, राधा स्वामी मिशन भी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की मान्यता करते सन। इस प्रकार असी शरह विच आके असी अपने नालों ये सिख तोड़ लो। अज लखां करोड़ां की गिणती दे विच साडे गुरु नानक दे घर दे सिख उन्हां मत्तां ते पंथां विच शामिल हैं। वो भावें गुरु साहब नूं मन्नण या ना मन्नण, पर निर्मले महात्मा ऐनियां सट्टां खा के भी अज भी धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रचार करते हैं, साबत सूरत रहते हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का ही प्रचार करते हैं। ये मैं संगतां दे रूबरू टीका टिप्पणी की है कि असी अपने विचों वो लोग अलग कर ले। आप संगत नूं ज्ञात होवे
कि ब्यास का पहला स्थान श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के नामपुर है। प्रसाद संगत अज करोड़ों की गिनती दे विच वो साडे नालों अलग हैं, उन्हां दा मंत्र अलग है। मैं तां कह रहा कि किन्ना सिख जिहड़ा है सिख पंथ विचों विछड़ गया, वखरा कर दिता गया। इवें निर्मले महात्मा नूं भी बड़ी कोशिश की गई, पर निर्मले महात्मा शुरू तो लैके कलगीधर सच्चे पातशाह दियां गुरु नानक साहब दियां सीसां लैके अज तक गुरबाणी का प्रचार प्रसारण समूथ क्रिया नाल करते आ रहे। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्री गुरु दसों पातशाही जी के उपदेशी सर्व स्वजनों को मालूम होवे, जो 10-12 वर्षां ते निर्मले निहंगों संवाद पानी बिलोमना हो रहा है, सच सच नहीं जाहिर करते, मन भाए पटाखे चला रहे हैं। इस वास्ते मैं टहलदास मशहूर ठाकुरदास उदासी साध पक्षपात छोड़ के सही सही जार करता हूँ, क्योंकि ये वारदात सब मेरे सामने हुई है। अरसा 20 वर्ष से मैं श्री अबचल नगर शहर नादेड़ कभी कभी हैदराबाद रहता हूँ। सब सिंह मैनू जानते हैं। जब सम्मत 1930 का चतुर्मासा हैदराबाद करके निर्मले संतों का अखाड़ा हजूर साहब के पुजारी निहंगों के मार बुकारे सुनकर दूर दूर चला गया और बुरहानपुर पहुंच गया। पीछे पुजारियों को सब खालसे ने कहा, तुमने अच्छा नहीं किया, साधुओं को दरबार साहब आमने ते डराए दिया। उसी वक्त पुजारियों ने हुक्मनामा मोहर लगा के और बिशन सिंह सेवा सिंह को देकर अखाड़े पास भेजा, जिसे मानकर अखाड़े वाले 150 कोस फिर मुड़ के हजूर साहब आ गए। उस दिन तमाम खालसा जी बड़े छोटे पुजारी सब आगे लेने गए। बड़ी धूमधाम से अखाड़े को इज्जत आदर के साथ लियाकर उतारा। गुरुद्वारे में हमेशा ही खालसे के 2-3 धड़े बने रहते हैं। जो लोग अखाड़े को लियावन में अगवानी थे, दूसरे धड़े वाले उन पर रिश्वत का इल्ज़ाम देकर आपस में झगड़ा बढ़ाने लगे। एक दूसरे को झूठ ही कहता था, साधु ने किसी को कुछ नहीं दिया था। ये झगड़ा पुजारियों में होता रहा, साधु को आज कल करते रहे। इसी में महाराजे पटियाले नाभे जीत को भी मातबर वहां पहुंचे, पर कुछ पेश न गई। इस तरह 1 वर्ष गुजर गया। सब निर्मले तुरने को तैयार होते थे। पुजारी अरदास कर देने का इकरार करके करने रोक लेते रहे। आखिर सम्मत 1932 जेठ सुदी 7 को बड़े पुजारियों ने साधु पास दरबार साहब का चौबदार तारा सिंह सांझ के वक्त भेज के न्योता दिया कि तुम सवेरे तैयार रहना, 5 बजे आओ, दर्शन करो, अरदास कराओ, भंडारा लेवो देवो। अमृत वेले पुजारी हरि सिंह सुखई, खुशहाल सिंह, मजैल सिंह, बिशन सिंह, प्रेम सिंह आदर समेत 40 सिंहों के जाय के डेरे से साधु को ले आए। 48 साधु आए, सफेद वस्त्र समेत कच्छा के थे। ऊपर तख्त हजूर साहब के बिठाए गए। अंदर पुजारी देवा सिंह था। इतने में नारायण सिंह पुजारी बाहर का, हर्षा सिंह लांगरी आ गए। जब प्रसाद को तीर लगाने वास्ते अरदासा करने को खड़ा हुआ तो नारायण सिंह वगैरह ने कहा कि तनख्वाह की जगह साध क्यों नहीं खड़े किए, तख्त पर पहले ही काहे को बैठा लिए। हरि सिंह वगैरह ने हट किया, अब तो बैठ गए, नाले संतों को तनख्वाह नहीं होती। इसी बात पर आपस में बहुत बहस होकर गाली देने लगे। तलवार खींच ली, रौला पड़ गया। एक निहंग ने बंदूक हरि सिंह को मारी।
सो तो बच गया, पास सिपाही था उसके लगी सो मर गया। जो असी पहले सुनिया वो एक उदासी महात्मा ने सारी ये साध संगत लिखी है, मतलब कि रूबरू सारा कुछ देखिया। बंदूक चलने पर अते खून होने पर करतार सिंह कूके ने, जो पहले भी गाली दे रहा था, बड़ी धौंस बजा दी और ऊंचे पुकारने लगा, निर्मले जबरन तख्त पर दरबार लूटने को आ चढ़े हैं। फिर तो नौबत सुनते ही निशानी जंग की थी। 600-700 पिंड, 600-700 सिंह पिंड में से शस्त्र लेकर दौड़े आए। किसी ने कोई दरियाफत ना की थी, साधु पर हल्ला कर दिया। साधु बहुत ही कह रहे कि हम बुलाए आए हैं, जो तुम कहो हम मानते हैं, मारो नहीं। किसी ने ना सुना। 800-900 साधु जख्मी कर दिए। सब खाली हाथ खड़े थे, मार कूट बार निकाल दिए। कोठों पर से औरतों तक ने भी पत्थर बरसाए। इतने में फौज लेकर तल्लुकदार आ पहुंचा, सबको गिरफ्तार कर लिया। जख्मी डॉक्टर के सुपुर्द हुए। बाद तहकीकात 8 निहंग जिन्हों के नाम पुजारियों ने लिखाए थे वो कैद हुए। साधु महात्मा बरी किए गए, बल्कि साधुओं ने किसी के मारने वाले का नाम नहीं लिया। यही इजहार देते रहे कि हमारे कर्मों ने हमको मारा है। फिर जिस तरह के कैद हुए थे वही झूठी चिट्ठियां पंजाब को भेजने लगे। मोहर भी उनके पास लगाने की थी और 7 महीने तक बाद दंगे के फिर भी साधुओं को पुजारियों ने आजकल अरदास कर देने की इकरार पर बैठा रखा। रिश्वत मांगते रहे, हर एक हजारों तक मांगता था। अंत नूं मकर सुदी पंचमी को साधु वहां से कूच करके पंजाब को चले आए। साध संगत ध्यान दिओ कि पैसे मंगते सन, रिश्वत दिओ दर्शन तां करावांगे। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी ने तेल दा कड़ाया तपा के ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸੰਦ ਕੜਾਏ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਫੂਕੇ ਸਨ ਵੀ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਦਈਏ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਐਸੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਸੰਦ, ਜੇ मैं गलत ना कहा। उस दंगे में दरबार साहब 4 पहर बंद रहा था। सांझ को पूजा हो गई थी, जो उन्होंने चिट्ठियां में बहुत दिन लिखे सो झूठ। अलबत्ता जब सम्मत 1934 में फिर आपस में पुजारी लड़े, 4 खून हुए, तदों 61 दिन दूसरी वारी 13 दिन बार बंद रहा और चिट्ठियों में 500 अरब तुर्क, किसी में 700 नौकर रखना निर्मलों के बाबत लिखा है। सो 16 आने झूठ है, एक भी नौकर नहीं रखा गया। हमने अपनी आंख से देखा सो संक्षेप से लिखा। विस्तार से कोई जवाब चाहे तो श्री अमृतसर बालानंद के अखाड़े में विश्वंबर प्रसाद महंत की मार्फत मेरे पास चिट्ठी भेजे, बखूबी जवाब दूंगा। अफसोस है सिंहों की अकल पर, जिन्होंने सच झूठ कुछ नहीं विचारा। ऐसे बड़े विद्वान संतों के साथ जिन्होंने विद्या के बल से विदेशों में सूरज की तरह सिंह पंथ को रोशन कर रखा है। उनकी अरदास बंद करनी और विवाद करना भारी अन्याय है। ऐसे थे इंसाफ पंथ के पुजारियों का कब भला होगा, जिन्होंने झूठा ही विरोध डाल रखा है। हम उदासी लोग निर्मलियों से विरोध रखें तो रखें, क्योंकि इन्होंने सिंहों के पुत्रों को उदासी होने ते रोक लिया, केसा की रक्षा कर दी। बहुत ही अखबार इश्तिहार छपे हुए पुजारियों की तरफों मार्फत दूल्हा सिंह के हमारे पास दक्खन में पहुंचे हैं, जिन्हों में निर्मले साधुओं की बिल्कुल अनहोई निंदा लिखी है। परंतु निर्मलियों ने पत्थर जवाबी नहीं पाया। ऐसे सब्र किया
जो सच को भी जाहिर नहीं किया। इस वास्ते मैं सही सही बात का इश्तिहार सज्जनों को निश्चय कराने के वास्ते देता हूँ। फक्त पंथ खालसा सच झूठ ना नितारेगा तो अन्यायी ठहरेगा। दस्तक टहलदास दखनी, अमृतसर, अखाड़ा बालानंद जी का, कटड़ा रामगढ़िया, 829 संवत 1944, साल श्री गुरु नानक साहब जी का 418, मतबूआ चश्मे नूर प्रेस अमृतसर। ये सारी दी सारी लिखत साध संगत उस टाइम दी चशमदीद गवाह उदासी महात्मा ने, ताकि निर्मले महात्मा ने किसी तरह नाल कोई, क्योंकि गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह का तखत है, तो कलगीधर सच्चे पातशाह ने निर्मले महापुरख थापे ने धर्म प्रचार लई थापे ने, ना कि जंग लई या लड़ाई लई थापे। इस वास्ते ये जो पुरातन लिखत है अज भी खरड़ा पिया होया है, जो कि इत्थे छापिया गया है। कहण तो मुराद साध संगत अपनी कोई आप ही सफाई देवे ते गल वखरी हुंदी है, परंतु कोई दूसरा सफाई देवे तो फिर गल साध संगत मजबूत हुंदी है। इस प्रकार उस उदासी महात्मा ने कहा, असी जे निर्मलिया नाल कोई करिए वितकरा ते गल बनदी है, पर ये सिखां दा प्रचार, बाणी दा प्रचार एडे धुरंधर विद्वान महापुरख करते होण ते तुसी सिख लोग इन्हां नाल वितकरा करो, कोई सोचो तो सही। सो इस प्रकार साध संगत ये सारे दा सारा इतिहास आप जी ने पुरातन सरवण किया है। ये सारिया लिखतां जदों असीं वाचीए पढ़ीए तो पता लगता है किड्डे किड्डे परोपकार महापुरखों ने कीते, अज भी चल रहे ने, अगे भी चलते रहणगे। गुरु साहब कृपा करन कि असीं इस पंक्ति नूं लैके चलीए कि होवो इकत्तर मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो निवलाए, हर नामे के होवो जोरी ते गुरमुख बैसो सभा विछाए। अज भी इकत्तरता की लोड़ है। मेरी 62 साल की उम्र हो चुकी है। मैं बचपन तो सुनता आ रहा हाँ कि एक निशान दे हेठ आओ, एक निशान दे हेठ आओ, एक निशान दे हेठ आओ, एकता रखो। पर साध संगत अज तक एकता दा बिगल वजदा रहा है, पर एकता है कित्थे है। सब दा साडा आपो अपना राह है। कोई ऐस बन्ने तुरया जांदा, जो जो आयो सो अपना राह चलायो। पर निर्मले महापुरख शुरू तो लैके अज तक अगे आने वाले समय सतगुरु कृपा करन, गुरबाणी का प्रचार प्रसारण असी बाखूबी करते रहिए। साडे अस्थानां ते किसी प्रकार नाल धागा तबीत टूणा जंतर मंतर तंत्र किसी दीवियां दे चक्रां च नहीं पाया जाता। अज कई अमृतधारी सिख हो के भी इन्हां चीज़ां दे शिकार ने। ज्योतिषियां पत्रियां च विश्वास रखना, पर साध संगत निर्मला महात्मा महापुरख गुरु महाराज के चरनां च अरदास विच विश्वास रखता है, बाणी विच विश्वास रखता है, इतिहास का प्रचार करता है। आप पिछे सरवण करते आए हो कि बड़ियां लिखतां बड़े ग्रंथ उच्च कोटि के महापुरखों ने देना दित्तियां ने। कोटान कोट नमस्कार ऐसे महात्मा नूं कि जिन्हां ने निमरता रख के साध संगत धर्म का प्रचार एक हिमालय पर्वत की तरह लगातार प्रचार दे आ रहे ने। सतगुरु जी कृपा करन आप सरवण कर रहे हो निर्मल पंथ की गौरव गाथा का इतिहास। बाकी इतिहास आपां कल सरवण करांगे। 12 बजे तो 1 बजे तक आप सिमरन विच जुड़ते हो। 3:30 तो 4:30 ये कथा आप जी सरवण करते हो। आओ सारी संगत प्यार सहित सतगुरु सच्चे पातशाह जी के चरनां च हाजरियां भरदियां होया इतिहास सरवण किया है।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਭਿਆਸ ਬਣਾਈਏ, ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਕਰਮ ਕਰੀਏ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਅਟੈਕ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।